نوجوانوں کو، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی کرسچن اسکول ہی میں بھیجتے تھے، وہاں جانے کے بعد بچے وہی آداب اخلاق سیکھ کر آتے تھے. لیکن مسلمانوں نے ماشاءاللہ ہر جگہ، بنگلور میں، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں، مہاراشٹرا میں، ہر جگہ مسلمانوں نے ادارے قائم کیے تاکہ اس فلسفی کے جو اثرات تھیں اسے کم سے کم کیا جائے. نمبر 1، تعلیم کے یہ اثرات جو ہیں اسے کم کیا جائے اور ہم حقیقی معنوں میں ان اثرات کو قبول نہ کریں. ہم یہ نہ مانیں کہ صرف انسان کی عقل رہنمائی کے لیے کافی ہے. ہم یہ نہ مانیں کہ انسان صرف پیٹ کا بندہ ہے. ہم یہ نہ مانیں کہ صرف انسان جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. ہم یہ نہ مانیں کہ کسی پر رحم نہ کیا جائے، قوت ہی کا استعمال کیا جائے. اور ہم یہ نہ مانیں کہ ہم جو ہے خدا کی مخلوق نہیں، ہم آزاد ہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ذہن، ہمارا مزاج، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے صالح بندے بننا چاہیے. اور دنیا میں روزی روٹی ملے تب بھی صحیح ہے، فراغ روزی ملے یا کم روزی ملے تب بھی صحیح ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ تصور ہمارے یہاں عام ہونا چاہیے. نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ ان فلسفی کا اثر میں نے بیان کیا. دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کے اثرات نوجوانوں پر جو ہوئے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں اپنے اختتام کی طرف آؤں گا کہ میڈیا نے بھی نوجوانوں پر زبردست اثرات چھوڑے ہیں. آج کا جو نوجوان ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے ساتھ اس نوجوان کی تصویر سامنے نظر آتی ہے. وہ یہ کہ صاحب پینٹ ایسا پہنیں گے کہ بس ایک جھٹکا لگے تو گر جائے، یہاں تک پہنتے ہیں. لو ویسٹ ایسا ہے کہ یہاں پہنتے ہیں کہ کشمیر میں شرٹ پہنیں گے تو ہائی ٹاپ ہوگا، پینٹ پہنیں گے تو لو ویسٹ ہوگا، کان میں رنگ ہوگا، ہاتھ میں جو ہے کڑے ہوں گے. لڑکے کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سمجھے. اس کے بعد پرٹیکولر برانڈ چاہیے. ماں باپ سے ان کا جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے کہ صاحب ان کو فلاں برانڈ چاہیے. جینس چاہیے تو REPE، وہ کیا پڑھتے کیسا پڑھتے مجھے نہیں معلوم ہے نا. اور ریپی جینس چاہیے. گھڑی چاہیے تو اس کا ایک برانڈ ہے FCU کے برانڈ، فلاں برانڈ چاہیے، اس کی گھڑی ان کو چاہیے. شوز چاہیے تو نائکی کا شوز چاہیے. ایک مرتبہ میرا بیٹا اصرار کر رہا تھا کہ ابا نائکی کا شوز چاہیے، اور اس نے کہا کہ 50% وہاں ڈسکاؤنٹ میں. ہمیں جا کر دیکھا تو بچے کا شو 50% ڈسکاؤنٹ میں 5000 روپے ہے. اب 100% میں کتنا ہوگا؟ تو نائکی کا شوز چاہیے، ایڈیڈاس کا بیگ چاہیے، لیوس برانڈ کا جو ہے ان کو وہ کینوس چاہیے، کیجولس چاہیے، ٹیٹوز ہوں گے، ڈھیلے پینٹ ہوں گے، بال رنگے ہوئے ہوں گے، یہ بال الجھے ہوئے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ابھی بستر سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں. بال کو یوں بکھیر کر لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ بکھرے ہوئے بال ہیں، وہ ایک سائیکالوجی کی علامت ہے جس کا میں ذکر کروں گا، سمجھے نا. یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. بنین اور انڈرویئر چاہیے تو وہ بھی ایک برانڈ ہے. یہاں کیا برانڈ چلتا ہے؟ جاکی چاہیے، ہے نا. ہر چیز کا ایک برانڈ. بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر برانڈ کانشیسنس، یہ پوری سائیکالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اب لڑکیوں کے برانڈز مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا، اس لیے میری بیٹیاں چھوٹی ہیں، بہت سیکنڈ سٹینڈرڈ اور فرسٹ سٹینڈرڈ کے. لڑکوں کے برانڈ تو مجھے معلوم ہے. آپ کے یہاں کیا برانڈز ہیں مجھے نہیں معلوم. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں اس بات کی علامت ہے اس نئی نسل کی کہ ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس. بھائی ہم آزاد ہیں، ہم کسی کی کیئر کرنے والے نہیں. یہ جو ہے وی ڈونٹ کیئر نسل ہے. یہ نسل اس بات کا اظہار کرتی ہے وی ڈونٹ کیئر. ہمارا پینٹ نیچے گر رہا ہے، وی ڈونٹ کیئر. ہمارا جو شرٹ اونچا ہوا ہے اور سجدے میں جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے سامنے والے کو دیکھ کر. وی ڈونٹ کیئر. یہ وی ڈونٹ کیئر والی نسل ہے کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرنے والے ہیں. وی ڈونٹ کیئر. کان میں جو ہے بالی لگے ہوئے لڑکا ہو کر وی ڈونٹ کیئر. نہیں ہم تو لڑکی، بھائی لڑکی کی طرح لگتے ہیں، وی ڈونٹ کیئر. یہ وی ڈونٹ کیئر کی نسل ہے جس کی اچھا بال جو بکھرے ہوئے، یہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ صاحب یہ بہت بکھرے ہوئے ہیں. نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کیئرفلی کیئرلیس. کیئرلیس ہے وہ، لیکن کیئرلیس ایسا نہیں ہے کہ بے خودی سے کیئرلیس ہے. بہت کیئرفلی اور کیئرلیس ہے کہ صاحب ان کے بال بکھرے ہوئے ہونے چاہیے، ان کے کپڑے الجھے ہوئے ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں کیئرفلی کیئرلیس نسل ہے. تو میڈیا نے اس نسل کو تیار کیا اور اس پوری نسل کو اصل میں کمرشلائز کر دیا. اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ ایک ایک چیز 5-5 ہزار روپے کی خریدیں تو ان کی دکانیں چلتی ہیں. ہر برانڈ کی دکان چلتی ہے تو مسلم نوجوان یا عام نوجوانوں کی وجہ سے چلتی ہے، اس لیے کہ کمرشلائز کر دیا ان کو. پھر ان کے CDs چلیں گے، ان کے فونز چلیں گے، ان کی ہر چیز چلے گی، جس کے نتیجے میں نئی نسل کو آخرت فراموش بنا دیا، دنیا پرست بنا دیا. یہی دنیا ہے، اسی دنیا کو انجوائے کرنا ہے، اسی دنیا میں مستی کرنا ہے. یہ ان کا مزاج میڈیا نے بنایا. نمبر 1 ہے کہ تعلیم نے مزاج کو بگاڑا، تو دوسری طرف میڈیا نے ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ہورڈنگز کے ذریعے سے مزاج کو بگاڑا گیا. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم کے نتیجے میں ہماری نئی نسل کو جو کچھ کرنا چاہیے اس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تعلیم جو حاصل کرتے ہیں اچھے مسلمان بنیں. یہ پریورٹی نمبر 1 ہے. آپ رینک میں نمبر 1 آتے ہو یا نمبر 10 آتے ہو، اس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمان ہو اور اچھے مسلمان ہو. اسلام جو مسلمان چاہتا ہے قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر.
अब प्रॉब्लम है उम्मत का कि जैसे ही मुसलमान बनना शुरू हुए, हम जरा नेक बनना शुरू हुए, सामने को हम बिदअती शुरू कर देते हैं, सामने को हम जहन्नमी करार देते हैं, सामने वाले को हम गुमराह करार देते हैं। ये दीनदारी नहीं है। दीनदारी का मतलब ये है कि कुरान और हदीस की बुनियाद पर पूरी उम्मत को एक समझें, पूरी उम्मत का दर अपने पैदा करें और अच्छे मुसलमान बने। ये तालीम का सबसे पहला मकसद है। हम पढ़े साइंस, तो साइंस में हमको नजर आए कि कुरान जो खुदा ताला का तस्वुर देता है, यूनिवर्स का हम मुताला करते हैं, साइंस का हम मुताला करते हैं, हम किसी कीड़े और मकोड़े को काट कर जो है उसकी एनाटॉमी को देखते हैं, डिसेक्शन करते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं और लिखते हो तो वहां हमको खुदा नजर आए, खुदा की सन्नाई, खुदा की कारीगरी। अब बॉटनी पढ़ते हैं, एक पत्ते को देखिए किस तरह से वो पत्ता निकलता है, किस तरह से फूल खिलता है, किस तरह से फूल की खुशबू बिखरती है, फूल की नजाकत को, फूल की रंगत को, फूल के हुस्न को देखें तो खुदा याद आए, खुदा की सन्नाई, खुदा की कारीगरी, खुदा की अजमत आदमी को याद आनी चाहिए। पढ़ने के नतीजे में हम अच्छे मुसलमान बने तो सबसे पहला ये कि खुदा से हमारा की मोहब्बत, खुदा से हमारा लगाव, खुदा से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। उसके नतीजे में आदमी फिर नमाज का पाबंद बने, रोजे का पाबंद बने, किरदार अच्छा पैदा करे और नरमी और लय्यिनत और कौल सदीद, ये सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। पहली बुनियादी बात जिसे मुझे अर्ज करना था वो ये है कि हम अच्छे मुसलमान बने। नंबर एक ये है कि नमाजी बनना, रोजेदार बनना ये बात है, उससे पहले फिक्र और नजर को बदलना, खुदा से मोहब्बत पैदा करना, रसूल से मोहब्बत पैदा करना, रसूल का अपना उसवा बनाना। एक जगह मैं मुस्लिम कॉलेज में गया था, मैंने पूछा कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। अब चूंकि मैंने मौजूद छेड़ दिया तो अब मैं पूछूं तो आप जवाब दे देंगे। तो एक ने कहा कि अब्दुल कलाम, किसी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर, किसी ने कहा कि आमिर खान, वही आजकल जरा मारूफ है ना, पब्लिक के काम करता है वगैरह वगैरह। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि रोल मॉडल जो है, किसी के जहन में यह बात नहीं आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है। आपकी जिंदगी का मुताला आप करके देखेंगे, ये भी हमारी कमजोरी है कि हम सीरत के मजलिस में दूसरी बातें अर्ज करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल जवानी में कैसे थे, अल्लाह के रसूल जो है अपनी बीवी से मोहब्बत कैसे करते थे, अल्लाह के रसूल बिजनेस कैसे करते थे और पैसे वाले कैसे बने, कितने करोड़ों की दौलत उस जमाने में आपने कमाई और अपनी बीवी को जो उन्होंने महर दी। मैंने एक जगह उसको पूरा कैलकुलेट करके रखा है, महर को मैंने कैलकुलेट करके कन्वर्ट किया तो उन्होंने 50 लाख रुपए आज के हिसाब से महर में दिया। हमारा जमाना है कि उल्टा हम लेते हैं वहां से जहेज के नाम से और देते कितना है, 10,786 रुपए। कश्मीर में कितना रखते हैं मुझे नहीं मालूम है, या कितना महर देते हैं, इतना ही 50 लाख कोई दे सकता है अपनी बीवी को? आप में से कोई है दे सकता है? नहीं, किसी के हाथ नहीं उठे। ले सकते हैं? अल्लाह के रसूल की सीरत, आप उसवा ही हमारे लिए, आपकी जवानी, आपका बचपन, आपका सोशल सर्विस, आपकी शादी, आपके बच्चों को जन्म देना और तरबियत करना। उसके बाद नबूवत का जमाना आता है। नबूवत के जमाने में तो कुरान ने महर तस्दीक लगा दी कि आप उसवा हैं, लेकिन उससे पहले की जिंदगी में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अच्छे मुसलमान होने के लिए कॉन्सेप्चुअली खुदा से मोहब्बत और रसूल से मोहब्बत पैदा हो और उसके नतीजे में अमाल ढलते हैं। हमारी तो कमजोरी है कि हम अमल पर तवज्जो देते हैं और कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए, आइडियाज को ठीक करने के लिए हमारे पास तवज्जो नहीं होती, और ये सब होते हैं कुरान और हदीस से कॉन्सेप्चुअली। पहले नंबर पर हमको जो है तालीम के नतीजे में हम खुदा और रसूल से मोहब्बत करने वाले और इस्लाम के दिलदादा बने, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इल्म हासिल करें। पढ़ना इसलिए है कि अच्छा सा इल्म हासिल करें, और एक एक सब्जेक्ट का मुताला करते हैं तो वो एग्जामिनेशन के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से लड़कों को देखा, क्योंकि मेरे साथ कश्मीरी नौजवान भी होते थे, खुद हम लोग भी एग्जाम करीब आने के वक्त वो पढ़ते हैं, उससे पहले उनकी पढ़ाई नहीं होती। अब पढ़ते भी तो पहले ये करते हैं कि पुराना क्वेश्चन बैंक ले आते हैं, क्वेश्चन बैंक से अंदाजा लगाते हैं कि यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे तो इसमें से 2 सवाल आ जाएंगे, यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तो इसमें से 1 सवाल आता है। ऐसा यहां भी होता है क्या? फिर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, गुज़िश्ता साल जो है यूनिट 1 से पूछ चुका है, अब यूनिट 2 से पूछेगा। सब अंदाजा करके कम और बेश करके 10% किताब पढ़ लेंगे तो 35 मार्क निकल जाएंगे। ये पढ़ाई बात लोग करते हैं, हम आपको ये मशवरा नहीं देते। पढ़ें तो टॉप मोस्ट लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए और ढूंढना चाहिए उसके अंदर गौतजन होकर। देखिए अभी नई पार्टिकल की इजाद हो रही है, वो पार्टिकल क्या है मालूम है आपको? हाँ, गॉड पार्टिकल, न्यूटोनोसिस है ना। अब ये है कि साहब वो कहते हैं कि लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार में चलने वाला पार्टिकल है, उस पर गौर करें। ये सब तो और लोग करते हैं, मुसलमानों में भी ऐसे होने चाहिए जो मुताला करें, गौर करें। और कुरान ने कई मुस्तकबिल के उलूम का जिक्र किया है, अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री का उसमें जिक्र मिलेगा, जियोग्राफी का उसमें जिक्र मिलेगा और बहुत से उलूम का उसमें जिक्र मिलता है। हमारा रुझान होना चाहिए कि कुरान के मुताले से उसकी तरफ आए। देखिए कुरान में एम्ब्रियोलॉजी, मां के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है, जो प्रोसेस बयान किया है, उस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने नहीं समझा, डॉक्टर्स ने नहीं समझा,
आज से 20-25 साल पहले उस पूरे प्रोसेस को लोगों ने समझा। कीथ मोर एक बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब इसका मुताला किया सऊदी अरेबिया में थे, यूनिवर्सिटी में, जब उन्होंने स्टडी की, कुरान को स्टडी की, तो उसके नतीजे वो मुसलमान हो गए। उन्होंने देखा कि जब कुरान मजीद ने एम्ब्रियोलॉजी के डेवलपमेंट पर, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पर जो स्टेजेस बयान करता है, वो हमारी साइंस भी उस स्टेजेस को बयान करने से खासियत है। उन्होंने देखा, उसको फाइंड आउट किया, माशाल्लाह वो मुसलमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुरान का गहराई से मुताला किया। तो उसमें मुस्तकबिल के साइंस मिलते हैं। हमारा तरीका क्या है, हम साइंस को पढ़ते हैं, कुरान की आयत को तलाश करते हैं, तकरीर में बताते हैं साहब ये बात साइंस ने आज ईजाद की, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताइए कि कुरान में ये बात है और आइंदा 10 साल के बाद, 50 साल के बाद ये इल्म जो दुनिया में आने वाला है, अगर आप ये कहते हैं तो आप साइंटिस्ट हैं, आप गौर फिक्र करने वाले हैं। साइंस को पढ़े, कुरान की आयत को जोड़ लगा दें और आप बयान कर दें कि साहब कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया, ये कोई बरतरी नहीं है कुरान की, बल्कि कुरान मजीद के साथ गोया कि एक मानो में है, हम उसकी कमतरी का इजहार करते हैं कि साइंस के ईजाद और उसके सबूत करने के बाद कुरान की बात सच्ची साबित हुई। ये गोया कि कुरान की अजमत का इजहार नहीं है। अजमत का इजहार है कि आप उस बात को बयान करें जो 50 साल के बाद वजूद में आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी में, जियोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, इन सब में बहुत से उमूर है। आप अगर दिलचस्पी तो हम बता सकते हैं, इस पर आदमी गौर करेगा तो आगे नए उलूम निकलेंगे। नंबर 2 कि आदमी इल्म दोस्त बने, और जितना जितना आदमी इल्म हासिल करता है उतना उतना उसे खुदा की मारिफत हासिल होती है। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह ताला से डरते कौन है? जो बड़ी टोपी पहनते, जो सफेद कुर्ता पहनते, जो 4 रकात ज्यादा नमाज पढ़ते। यह है कुरान में किसके बारे में कहा? जो इल्म रखते हैं, इल्म के नतीजे में खशियत पैदा होती है, खुदा का एहसास होता है, खुदा की अजमत का एहसास होता है, उसके नतीजे में हमारी पस्ती का एहसास होता है। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हकीकत ये है कि अल्लाह ताला से वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। और उससे पहले उस आयत को आप देखिए जहां बताया कि पत्थरों में अल्लाह ताला ने धारियां पैदा की, कुछ सफेद धारियां होती हैं, कुछ सुर्ख धारियां होती हैं, कुछ काली धारियां होती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की जबानों को अलग अलग पैदा किया और अल्लाह ताला ने फलों को अलग अलग पैदा किया। उसके फौरन बाद ये आयत आती है। उसका मतलब ये हुआ कि बॉटनी का इल्म हुआ, जियोलॉजी का इल्म हासिल करना, और ये सब उलूम के साथ जो है आदमी खुदा को पहचानता है तो खुदा का एहसास पैदा होता है, तकवा पैदा होता है। ये दूसरा काम है इल्म। नंबर 1 अच्छे मुसलमान बने। नंबर 2 ये है कि हम इल्म हासिल करें। नंबर 3 ये है कि हम इस्लाम की दावत को दुनिया के सामने पेश करेंगे। यही वो उम्र है जहां जज्बा होता है, जो खरोश होता है, आदमी जो है सब चीजों से बेनियाज होकर बात कर सकता है। और यहां चूंकि मेरे ख्याल से प्लूरल कल्चर नहीं है, सोसाइटी नहीं है क्या? यहाँ आपके साथ और लोग भी रहते हैं, यहाँ दीगर अक़वाम के लोग भी थोड़े बहुत होते हैं, तो उन तक या नेट के जरिए से, अब तो फेसबुक के नतीजे में आपको सारी दुनिया से कांटेक्ट पैदा हो जाता है। फेसबुक का इस्तेमाल नौजवान हमारे करते हैं। क्या करते हैं? मैं जो है फलां शहर को गया था, फिर उसके बाद दूसरा लड़का पूछता है तो अकेला गया था या तेरे साथ कोई और लड़की भी थी? फिर वो दूसरा जवाब लिखता है। फिर कहता मैं कमरे में चाय बनाया, तो दूसरा पूछता है उसमें शक्कर डाला कि नमक डाला। फेसबुक में यही तो करते हैं ना। कोई इल्मी बात होती है, कोई बुलंद बात होती है फेसबुक में? फेसबुक में लड़के ऐसा इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल आप करें दावत की खातिर, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की बरतरी के लिए आप फेसबुक का इस्तेमाल करें। और बहुत सी चीजें हो सकती है। नंबर 3 और नंबर 4 और आखिरी बात जिस पर हमारी गुफ्तगू खत्म होगी वो है खिदमत, इंसानों की खिदमत, बंदों की खिदमत, उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत, उनका दर्द दिल के अंदर पैदा होना चाहिए। और ये अगर नहीं है तो फिर गोया कि सही मानों में हमारे अंदर ईमान नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि वो शख्स मुसलमान नहीं जो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि जिसके घर के साथ हमारे घर की दीवार लगी हुई, वो नहीं है। रहते ही वहां अगर कोई आदमी भूखा सोता है, पावर्टी है, और पावर्टी एलिवेशन के लिए आप काम नहीं करते, आप गुर्बत की इजाले के लिए काम नहीं करते, लोगों के काम नहीं आते, तालीम में मदद करें, उनके जो है परेशानियों में आप मदद करें, ये ईमान का तकाजा है। और ये मोमिन के अंदर ये मिजाज पैदा होना चाहिए दावत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20-22 थी, बल्कि 22 थी एग्जैक्टली, जब आपने हिल्फुल फुजूल की मेंबरशिप इख्तियार की। मालूम है ना हिल्फुल फुजूल क्या था? हिल्फुल फुजूल का मतलब क्या है? मुआहिदा। उसको अगर अंग्रेजी में कहना चाहें तो एसोसिएशन फॉर द कॉज ऑफ अप्रेस्ड, जो मजलूमीन ही उनके लिए अंजुमने इमदादे मजलूमीन आप कह सकते हैं। उसका पस मंजर है कि एक आदमी आया मक्के में और उसने अपना इन्वेस्टमेंट दिया था, मक्के वालों ने उसे लौटाया नहीं। यमन का आदमी था जो जाते हुए वो गालियां बक कर गया। कुछ अशार उसने कहे जिसमें मक्के वालों की तौहीन थी। उसमें अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन जदआन
इन दोनों लोगों ने जब उसको सुना तो बड़ी तकलीफ हुई कि साहब मक्के के लोग अगर ये करें कि जुल्म करें, लोगों का माल खा लें, लूट खसोट करें, तो ये तो हमारी इज्जत के खिलाफ है, ये हमारी शान के खिलाफ है। इसलिए उसने ये किया कि अब्दुल्ला बिन जदान ने अपने घर में दावत दी और सबको बुलाया, बड़े लोगों को। उसमें नौजवान नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक नौजवान थी जिनकी उम्र 22 बरस थी। और उसके बाद उन सबकी दावत करने के बाद काबतुल्लाह को ले गया। हो काबतुल्लाह को ले जाने के बाद जमजम से हजर अस्वद को धोया, धोने के बाद जमजम के 4-4 खतरे सब लोगों को पिलाया जो मेंबर थे, और उन सब ने हाथ से हाथ पकड़कर यह अहद किया कि जब तक ये सिबर की पहाड़ियां मौजूद हैं और जब तक समंदर घूंगों को भिगोता रहेगा, है ना, गूंगे जो होते हैं उसको, घूंगों को समंदर आकर समंदर के पानी से जो उसके अंदर जाता, ये अशार है उसमें जुमले हैं कि जब तक ये पहाड़ी कायम है, जब तक समंदर में तमव्वुज है, तब तक ये हाथ मिले हुए होंगे जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में, यहां तक कि हमारी मईशत में इंसाफ कायम हो जाए। ये पूरे जुमले ऐसे हैं कि हमारी जो मईशत है इस वक्त दुनिया की मईशत जालिमाना है, इसके अंदर मसावत नहीं है, हैव्स अलग है, हैव नॉट्स अलग है। दुनिया की 1% आबादी ऐसी है जिनके पास दुनिया की 90% दौलत है, और दुनिया की 99% आबादी के पास सिर्फ 10% दौलत है, और दौलत के सिलसिले में इतनी नाहमारी पाई जाती है। ये मक्के का हिल्फुल फुजूल का एग्रीमेंट कहता है कि हम जालिम के खिलाफ मुत्तहिद हैं, मजलूम के हक में मुत्तहिद हैं, यहां तक कि हमारी निजाम मईशत में मसावत कायम ना हो जाए। खिदमत का जज्बा अल्लाह के रसूल के अंदर देखते हैं कि उसी वक्त आपने इस एसोसिएशन की मेंबरशिप इख्तियार की। मैं आपको एक सबक आमोज किस्सा कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। तमिलनाडु का एक आदमी शिवरामन था। करीब की बात है कि